A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics in which we have discussed the microeconomics and the statistics for economics. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters which is related to the statistics for economics. So we have done number of the numerical questions related to the mean, median, mode, as well as we have discussed the measures of the dispersion, like the you know very well that the most of the dispersion it is already been deleted from your syllabus, that is mean deviation, quartile deviation, range. So all these are deleted from your syllabus. So we have to study only the standard deviation as well as the coefficient of correlation or the coefficient of variation. Sorry, it's not a coefficient of correlation, coefficient of variation. We have already discussed. We have done number of the numerical questions of the variation, as well as after that we have discussed the Lorentz curve. So what is the Lorentz curve? After that we started the chapter that is measures of the correlation. What is correlation? What are the different methods of the measuring the correlation, in which we have already discussed about the topic that is scatter diagram method or the Karl Pearson's coefficient of correlation, in which we have discussed four methods of the basically the Karl Pearson's method, like step deviation, shortcut method, assumed mean method, or the direct method. You know that we no need to study the topic that is rank correlation, which is given by this Pearsman, because it is deleted from your topic because of the COVID. Okay. After that we have started the topic that is index number. What is index number? Problems of the or the difficulties of the basically the index number while construction of the index number. After that we have discussed the what are the different methods of the constructing the index number, in which we divided it into two, that is unweighted or the weighted. We have done the loads of the questions which is related to the unweighted or the weighted. So in the unweighted we have discussed the simple aggregative or the simple average of the price relative method. Next, in the weighted we have discussed the simple aggregative or the price weighted aggregative, in which we have discussed the Lespier method, Paasche method, and the Fisher's method. We know very well that the best method or the ideal index number is the Fisher's method. We have already done. After that we have started the topic that is the average related of the average aggregative of the weighted index number or the weighted price relative method, in which we have discussed with the help of the weight. After that we have started the topic that is there are different other types of the index number, in which we have discussed the consumer price index number, wholesale price index number. The industrial production index has been deleted from your top syllabus. After that we have started the topic that is agricultural production index, and the topic that is Sensex, etc. We have already discussed all these topics in the previous class. Okay, so after that we have shifted again the microeconomics, in which microeconomics in the various chapter also revised basically the problem which is related to the price determination chapter, as well as the topic that is simple applications of the demand and the supply of the application, as well as we have simultaneously we have started the topic that is theory of demand. So with the microeconomics we are also doing some numerical questions related to the statistics for economics, because with the help of both the books we have solving the questions, because many of the students have facing the problems which is related to the calculation of the mode when there is median when the cumulative frequency distribution is given, when the less than the question is related to the less than 5 or the more than 5. So the questions or the students are facing the number of the confusion related to that topic.
So we will study the topic that is theory of demand as well as the calculation of the median also. Okay, so in today's class we are going to study the one of the measure of the central tendency, that is mode, while the calculation of the median or the calculation of the mode in the case of the cumulative frequency series. Okay, so let's get started. To calculation of a mode in mid value series. So when mid values are given, जब mid value given होगा, the series is to be converted into exclusive series. सीरीज को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स क्लास इंटरवल आर टू बी फॉर्म. आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा. वी यूज द सेम प्रोसीजर एज वी यूज इन कंटिन्यूअस सीरीज टू कैलकुलेट मोड. और उसके बाद हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जो हम मोड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं. तो कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. कैलकुलेट मोड तो आपका दिया है यहाँ पे मार्क्स. मार्क्स क्या है, वो मिड वैल्यू दी है. मिड वैल्यू इज गिवन. नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो मार्क्स आपका 5, 15, 25, 35, 45, 10, 12, 8, 7, 6. अब आपको क्या करना है, मार्क्स को x लेना है. ठीक है, x क्या वेरिएबल होता है. तो ये क्या आपका गैप देके 10 का है, तो समझ जाइए कितना होगा. 5 से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो ये मिड वैल्यू दी हुई है आपका, ये आपकी कोई भी सीरीज की मिड वैल्यू इज गिवन. तो ये क्या हो गया आपका 0 to 10, क्योंकि 0 to 10 हम 10/2 करेंगे तो क्या आएगा 5. देन 10 to 20, 10 plus 20 कितना आया 30/2 which is equal to 15. देन 20 to 30, 30 plus 20 कितना हुआ 50, 50/2 25. 30 to 40, 30 plus 40 हो गया 70/2 35. देन 40 to 50, 40 plus 50 हो गया आपका 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45. ठीक है, और इसको कैसे कन्वर्ट करने हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0 और ये हो गया F2. ठीक है, समझ में आई गया होगा. अब ऐसी अब क्या है इसमें, सेम सिंपल सा वही है जो प्रोसीजर हम अब तक करते आ रहे थे कि Z इक्वल टू L1 प्लस F1/F0 to F1 F0 minus F2 into I. L क्या होगा आपका, जब हम लोग ये ले रहे हैं तो L हो गया आपका 10 प्लस F1 क्या होगा 12/10. then 12 into 2 minus 10 minus 8 into ये क्या होगा 10. ठीक है, फिर 10 प्लस 12 2 जा 24, 18 इंटू 10. Z इक्वल टू 10 प्लस 2 18 कितना हो गया 6 हो गया. 18 19 20 21 22 23 24 6. यस 10. देन Z इक्वल टू 10 प्लस 2 3 जा 6. 10/3 क्या हो जाएगा 3.33. देन Z इक्वल टू 13.33. ये हो गया आपका. ठीक है, देख लीजिए इसको. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें देखिए, मार्क्स हमें मिड वैल्यू दिया हुआ था, हमें क्या करना था इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना था, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना था. और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसीज आप देख के क्या है, जैसे F1 F0 F2 करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करके इसको
सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ अ मोड इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जब आपके पास क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज सॉरी, जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे। ठीक है, जब आपको पता है इंक्लूसिव सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है, एन इंक्लूसिव सीरीज शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कोई भी इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है बाय एडजस्टिंग द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट को एडजस्ट करके आफ्टर ऑब्टेनिंग एन एक्सक्लूसिव सीरीज, जैसे ही हमें एक्सक्लूसिव सीरीज ऑब्टेन हो जाएगा, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इज सेम एज यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो मेथड है यूज करने का वो क्या है, सेम होगा आपका। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट मोड, डेली वेजेस दिया है, डेली वेजेस, रुपीज में दिया है रुपीज, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। $72, $79, $62, $69, $52, $59। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेली वेजेस एक्स कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या करेंगे इसको, आपको पता है कि हम लोग अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हम ऐड करते हैं और अपर लिमिट में हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है आपका 50 है, 50 से हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 49.5 टू 59.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका 59.5 टू 69.5, देन 69.5 टू 79.5, 79.5 टू 89.5, 89.5 टू 99.5, ठीक है। 49 से हमारा 99.5 तक हुआ। अब आपके पास क्या दिया हुआ है 15, 40, 50, 60, 45। F1 ये हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। देन Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। देन Z इक्वल टू L आपका क्या होगा, L होगा आपका 79.5। चलिए आगे एक बार आप लोग करिए इसको, एक बार सॉल्व करके देखिए, पूरा मैं करिए, एक बार आप ट्राई करो। F1 माइनस F0 की वैल्यू रखो 60 माइनस 50, ठीक है। क्या रखेंगे F1 आपका क्या है, F1 आपका 60 माइनस 50, ओके। देन क्या है 2F1 मीन्स 2 इंटू 60 माइनस F0 माइनस 50, और F2 क्या है 45 इंटू 10। देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 10 अपॉन 125 95 इंटू 10, 79.5 प्लस ये कितना हो गया 5, 25 इंटू
10. Then Z equal to 79.5 plus 10 into 10, 100 upon 25. Then Z equal to 79.5 plus 25 4 ja. Then Z equal to 79 plus 4, 83.5. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई. Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 9 of your statistics for economics, that is measures of the central tendency. So in previous classes we were already completed the topic median, the partition value, as well as we have started the new topic, that is mode. So we have solved some numerical questions related to mode. Now in today's class we are going to start the calculation of the mode in some specific cases, where the cases are different, when the mid values are given, when the inclusive series are given. So what we have to do in that case, so we will do calculation of mode in specific cases in today's class. Okay, so let's start. So first of all, it has given that the calculation of the mode in specific cases, the first one is calculation of mode in cumulative frequency distribution. Okay, cumulative frequency distribution. So there will be less than that number or the more than. Okay, when the series is given in the numbers and we have to convert it into the less than or the more than. So what we have to do? So calculation cumulative frequency series should be converted into simple frequency series. First of all, what we have to do, that the cumulative frequency series को हमको क्या है simple frequency series में convert करना पड़ेगा. There would be either less than or the more than cumulative frequency series given. ठीक है, या तो आपको less than or the more than cumulative frequency दिया होगा. After obtaining the simple frequency series, we calculate mode as we calculated it in the continuous series. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे जैसे हम नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं. तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट मोड इन द फॉलोइंग सीरीज. दिया है यहाँ पे वेजेस लेस देन, और है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स. सो वेजेस है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, and number of workers is 4, 10, 20, 30, 55, 79, 99, 100. अभी देखिए इसमें क्या करना है आपको. इसमें आपको पहले एक तो लेस देन वाली सीरीज बनानी है, एज वेल एज आपको इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है वो क्या है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेजेस को चेंज करते हैं. वेजेस में आपका हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. पहली फ्रीक्वेंसी हो गई 4, देन 6, 10, 10, 25, 24, 20 and 1. ठीक है, यही है 4, 6, 10, 10, 20, sorry, it will be 25. 55 minus 30 is 25. 25, 24, 20 and 1. ठीक है, अब आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 25. तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया और ये आपका F2 हो गया. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे। z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L क्या हो गया आपका, F क्या है ये, तो इसका L हो गया आपका 20 प्लस F1 माइनस F0 मीन्स 25 माइनस 10, then 25 माइनस इंटू 2 माइनस 10 माइनस 24 इंटू आई क्या होगा आपका 5, ठीक है। 20 15 50 34 5 20 प्लस 15 50 माइनस 34 होता है आपका 16 होगा, 4 16 यस, इंटू 5, then z equal to 20 plus 15 5 is 75 upon 16, z equal to 20 plus क्या हो गया आपका, आ गया है 4.68, then z equal to 24.68। आपका मोड कैलकुलेट हो गया, कितना आया आपका मोड, z इक्वल टू 24.68, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने किया है सिंपल सा कि हमको क्या करना था, पहले हमने किया है कि आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन था, हमको इसको पहले क्या करना था, कन्वर्ट करना था सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और इसके साथ जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था वो आपका क्या था, वो आपका था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको उससे कन्वर्ट करके क्या करना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था। फ्रीक्वेंसी से आप जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपका F1, उसका रिसीडिंग हो गया F0 और सक्सीडिंग हो गया F2। अब इस फॉर्मूला पे अब z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई पे आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज पुट करके आपका z क्या आ गया 24.68, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोड इन अ मिड वैल्यू सीरीज, कि जब आपका मिड वैल्यू दिया रहेगा उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। To calculation of a mode in mid value series. So when mid values are given, जब mid value given होगा, the series is to be converted into exclusive series. सीरीज को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स क्लास इंटरवल आर टू बी फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। वी यूज द सेम प्रोसीजर एज वी यूज इन कंटिन्यूअस सीरीज टू कैलकुलेट मोड, और उसके बाद हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जो हम मोड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट मोड, तो आपका दिया है यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स क्या है, वो मिड वैल्यू दी है, मिड वैल्यू इज गिवन। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स आपका 5 15 25 35 45 10 12 8 7 6। अब आपको क्या करना है, मार्क्स को x लेना है, ठीक है। x क्या वेरिएबल होता है, तो ये क्या आपका गैप देके 10 का है, तो समझ जाइए कितना होगा, 5 से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिड वैल्यू दी हुई है आपका, ये आपकी कोई भी सीरीज की मिड वैल्यू इज गिवन, तो ये क्या हो गया आपका 0 to 10, क्योंकि 0 to 10 हम 10/2 करेंगे तो क्या आएगा 5, देन 10 to 20, 10 plus 20 कितना आया 30/2 विच इज इक्वल टू 15,
देन 22 30, 30 प्लस 20 कितना हुआ 50, 50 अपॉन 2 25, 32 40, 30 प्लस 40 हो गया 70 अपॉन 2 35, देन 42 50, 40 प्लस 50 हो गया आपका 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45, ठीक है। और इसको कैसे कन्वर्ट करने हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0 और ये हो गया F2, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब वैसे ही अब क्या है इसमें सेम सिंपल सा वही है जो प्रोसीजर हम अब तक करते आ रहे थे कि Z इक्वल टू L1 प्लस F1 अपॉन F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू I। L क्या होगा आपका, जब हम लोग ये ले रहे हैं तो L हो गया आपका 10 प्लस F1 क्या होगा 12 अपॉन 10, देन 12 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 8 इंटू ये क्या होगा 10, ठीक है। फिर 10 प्लस 12 2 जा 24, 18 इंटू 10, Z इक्वल टू 10 प्लस 2 18 कितना हो गया 6 हो गया 18 19 20 21 22 23 24 6, यस 10, देन Z इक्वल टू 10 प्लस 2 3 जा 6, 10 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 3.33, देन Z इक्वल टू 13.33, ये हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिए इसको, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें देखिए, मार्क्स हमें मिड वैल्यू दिया हुआ था, हमें क्या करना था इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना था, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना था। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से आप देख के क्या है जैसे F1 F0 F2 करने के बाद क्या करेंगे फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ अ मोड इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जब आपके पास क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई, इंक्लूसिव सीरीज सॉरी, जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ठीक है। जब आपको पता है इंक्लूसिव सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। ओके क्या कह रहा है, एन इंक्लूसिव सीरीज शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कोई भी इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है बाय एडजस्टिंग द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट को एडजस्ट करके आफ्टर ऑब्टेनिंग एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे ही हमें एक्सक्लूसिव सीरीज ऑब्टेन हो जाएगा द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इज सेम एज यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो मेथड है यूज करने का वो क्या है सेम होगा आपका। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट मोड, डेली वेजेस दिया है, डेली वेजेस रुपीज में दिया है रुपीज एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। $72, $79, $62, $69, $52, $59। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेली वेजेस एक्स कर लेते हैं, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या करेंगे इसको, आपको पता है कि हम लोग अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हम ऐड करते हैं और अपर लिमिट में हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं।
तो लोअर लिमिट क्या है आपका 50 है, 50 से हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 49.5 टू 59.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका 59.5 टू 69.5, देन 69.5 टू 79.5, 79.5 टू 89.5, 89.5 टू 99.5, ठीक है। 49 से हमारा 99.5 तक हुआ। अब आपके पास क्या दिया हुआ है 15, 40, 50, 60, 45, F1 ये हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। देन Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। देन Z इक्वल टू L आपका क्या होगा, L होगा आपका 79.5। चलिए आगे एक बार आप लोग करिए, इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। पूरा मैं करिए, एक बार आप ट्राई करो। F1 माइनस F0 की वैल्यू रखो 60 माइनस 50, ठीक है। क्या रखेंगे F1 आपका क्या है, F1 आपका 60 माइनस 50, ओके। देन क्या है 2F1 मीन्स 2 इंटू 60 माइनस F0 माइनस 50, और F2 क्या है 45 इंटू 10, देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 10 अपॉन 125 95 इंटू 10, 79.5 प्लस ये कितना हो गया 525 इंटू 10, देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 25, देन Z इक्वल टू 79.5 प्लस 25 4 जा, देन Z इक्वल टू 79 प्लस 4 83.5, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई।